Good morning, my dear student. Today we will read your class at SST. In SST, we are reading the history portion, chapter 5, when people reveal 1857 and after. In this chapter, we have discussed the causes of the revolt, where I have taught you there were the four most important causes. On the basis of that, revolt happened on the whole northern India. That was the famous revolt in Indian history, 1857. My dear student, that causes, in short, I counted their first name. The first causes was the insult of the Mughal emperor and denied the demand of the local kings and rajas which they asked for. And second causes, that was unsatisfaction of the Sipahi and peasants. Third causes, the reform which was done by the Britishers. And fourth causes, that was the very important, that was the sudden reaction. What was the sudden reaction? Sudden reaction, it means it was a rumor. What is true, what's wrong, there is the matter of the discussion debate. But the rumor sudden grown that the Britishers introduced a new infield rifle. In that rifles, the bullets which was packed with the grease of pig and cows. Their cartilage covered that grease. Their fats made from the cows and पिग्स, सुअर और गाय की चर्बियों की बने कारतूस के जो कारतूस रखने वाले जो ग्रीस थे उस पर लगे होने के कारण और उन्हें दांत से खींचना पड़ता था, इसलिए अंग्रेजों के जो भारतीय सिपाही थे उन लोगों ने इसके खिलाफ विरोध कर दिया। फिर धीरे धीरे ये विद्रोह काफ़ी तेजी से पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। इसके बारे में अगर आप सोर्स 1 और सोर्स 2 देखें तो हम लोगों ने सोर्स 1 और सोर्स 2 पे बात की है। द चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट when people reveal, first portion, that what we have discussed. And in this topic, the second part, a mutiny becomes a popular rebellion. कब एक म्यूटनी पॉपुलर रिबेलियन में बदल जाती है, इन चीजों पे बात करेंगे। कहता है कि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि सबका शत्रु एक ही है, और वो शत्रु कौन है? भारत में उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उन सबसे बड़ा दुश्मन इनमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसलिए सभी वो एक साथ मिलकर कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के किए जा रहे दुर्व्यवहार से पूरी तरीके से मुक्त हो। और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उन्हें एक संगठित और सुनियोजित रूप से प्लान करके क्या करना हो? एक्शन लेना होगा। It means though the suggestion between the rulers and the rules are not usual, sometimes such struggles become quite widespread as popular resistance, so that the state breaks down. A very large number of the people begin to believe that they have common enemy and rise against the enemy at the same time. For such for such a situation to develop, people have to organize communities, take initiative and display the confidence to turn the situation around. Such a situation developed in the northern part of India in 1857. The revolt started in 1857. If you remember, I told you a story, the Subedar Sitaram. What he explained that कि घटनाएं कैसे हो रही थी और उसके किस तरीके से लोग के अंदर एक अंग्रेजों के शासन के प्रति एक क्रोध भरा था, क्योंकि वो उनके धर्म के ऊपर चोट कर रहे थे। और सोर्स 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि एक ब्राह्मण जो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, उन्हें सिपाहियों ने कहा कि आप घर लौट जाइए, क्योंकि 2-3 दिन में एक भीषण विरोध और विद्रोह होने वाले हैं। 2 रिसोर्स बताते हैं कि रिवोल्ट के लिए प्लानिंग की गई जरूर होगी। दैट्स वाई
that examples which is given in your book. We have read, we have discussed on that in our previous class. अब 1857, after the 100 year of the conquest and the administrations, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sipahi mutinied in the several places, beginning from the Meerut, and large number of the people from the different sections to society rose up in rebellions. Same regard it as the biggest armed resistance to the colonialism in the 19th century anywhere in the world. It means that was the revolt. It happened at vast level. The historians believe that it was not proper organized. They have no proper planning. But this is the matter of discussion and debate. That what happened during that time, which type of, by which way the सिपाही क्या हुए एक साथ आ चुके, क्या थी उनकी प्लानिंग, विच टाइप ऑफ प्लानिंग्स दे हैव. कह रहा है कि 1857 जो भारत का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे 1857 में जो एक ऐसी स्थिति बनी अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया के खिलाफ, वो उनके विरोध का कारण बनी. ऐसी परिस्थितियां रेवेन्यू के कारण, ऐसी परिस्थितियां रिफॉर्म के कारण, ऐसी परिस्थितियां जो यहाँ के लोकल किंग्स थे, राजा थे, मुगल एम्परर थे, उनके इंसल्ट के कारण, और ऐसी परिस्थितियां अनसेटिस्फेक्शन था जो पीजेंट्स और सिपाहियों के अंदर, उनके कारण. इन सारी परिस्थितियों के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब लोगों के अंदर भारी विरोध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति दिखाई देने लगा. इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ what? The religious purpose, on the basis of social purpose, on the basis of the economical purpose, and on the basis of the political causes. In India, northern part of India, the Sipahi and everyone protest the rules of the imperial state. I mean to say the Britishers. They denied, they opposed them, and they assembled, they planned that how can they remove them in their country, in their state, in their territory. अपने राज्य से, अपने क्षेत्र से, अपने रीजन से, अपने प्रांतों से कैसे अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सकता है. इसके लिए वो लोग सबसे महत्वपूर्ण क्या किए, यूनाइट होना शुरू हो गए. कह रहा है इसके लिए लोगों के अंदर ये भी था कि अंग्रेजों के जो भारत विजय के 100 साल पूरे होने के बाद एक प्रोफेसी थी. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेसी that after 100 years when the Britishers completed in India, the one revolt happened, and that revolt what threw out them, अंग्रेजों को पूरी तरीके से देश से उखाड़ के फेंक देगी. वो रिवोल्ट का टाइम आया 1857 मई का महीना. रिवोल्ट बड़े पैमाने पे शुरू हो गए. जब मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह रिवोल्ट किया. समाज के विभिन्न वर्ग के लोग विद्रोहियों के जो तौर तरीके थे, उनके जो एक्शंस थे, उनको देख के वो उनके साथ आके खड़े हो गए. कुछ लोग मानते थे कि 19th सेंचुरी में जो कॉलोनियल रूल्स हैं वो दुनिया भर में यह सबसे बड़ा संघर्ष है जो भारत में 1857 का हो रहा था. सम हिस्टोरियन बिलीव दैट they regarded as the biggest armed resistance to the colonial in the 19th century anywhere in the world. This mutiny, इस विद्रोह को कुछ इतिहासकार मानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह था. From Meerut to Delhi. Topic from Meerut to Delhi. मेरठ से दिल्ली तक क्या कर रहे थे ये. कहता है ऑन द 29th March 1857 द यंगर सोल्जर्स मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officers in the Barakpur. Some days later, some Sipahi of the regiment at Meerut refused to do army drill using the new cartilage, which were suspected of being coated with the fat of cow.
and pigs. 85 Sipahi were dismissed from the service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9th May 1857. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to jail in Meerut and released the imprisoned Sipahi. They attacked the killed British officers. They captured guns and the ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangi. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country. But who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question. The Mughal Emperor, Bahadur Shah Zafar. I mean to say that here the one question arises in the mind of the Sipahi, that after Britishers who ruled on India, Sipahi answered them that Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar, what? Their rule in the country that will run. चलेगी, उन्होंने ऐसा माना. So that's why they from May to Mumbai, Delhi, मेरठ से दिल्ली की तरफ वो मार्च करने लगे. The Sipahi of Meerut, I mean to say that Meerut, Sipahi of Meerut rode all night of 10 May to reach Delhi in the early hours. Next morning, as the news of their arrival spread, the regiment's stations in Delhi also rose up in the rebellion. Again, British officers were killed. Arms and the ammunition seized, buildings set on fire. The triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort, where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the might British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the place and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. It is a very strange matter, the front of the Bahadur Shah Zafar. You don't know about that, what happened during that time and what was happening also. If you remember the situation of that day, that was the month of Ramzan. Early in the morning, Badshah was in there, I mean to say that fort, Red Fort, and he was going to start their namaz, but he had heard that the Sipahi, they reached in Delhi in huge amount. They want that I mean to say that कि अब बहादुर शाह जफर पूरे भारत का लीड करे. उन्होंने विद्रोह कर दिया था, वो दिल्ली पहुंच रहे थे. एक आश्चर्यजनक बात थी बहादुर शाह जफर के लिए. The aging emperor had to accept this demand. He wrote letter to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implication. The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and the chieftains controlled the different territories on the behalf of the Mughal rulers. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. The British had not expected this to happen. They thought that these disturbances caused by the issue of the cartilage would dead down. But Bahadur Shah Zafar's decision to
blaze, the rebellion changed the inter situations dramatically. Often, when people see the alternative possibility, they feel inspired and enthused in giving them the courage, hope, and confidence to act. What was happening during that time? The situations was totally changed. कहता है कि ये विरोध, ये विद्रोह तेजी से फैलने लगा. मेरठ से दिल्ली तक सिपाहियों ने लंबी मार्च की. 29 मार्च 29 मार्च 1857 को एक जब यंग सिपाही मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दी गई बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के कारण, तो उसके कुछ दिनों के बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने भी इस कार्टिलेज का यूज करने से, इस कारतूसों का यूज करने से मना कर दिया. मार्च करने, दिल्ली पे जाने से भी उन्होंने डिनाई कर दी. और फिर इस बड़ी संख्या में सिपाहियों ने दिल्ली पे जाने से मना कर दिया, कार्टिलेज का यूज करने से मना कर दिया. और फिर इन्हें मना करने का 10 मई को इन सिपाहियों को अरेस्ट करके जेल में डाल 85 सिपाही देवर इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिशर्स. 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के कारण 10-10 साल की सजा दे दी गई. मेरठ में तैनात दूसरे जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने इसकी तीखी प्रतिक्रिया दी. रिएक्शन जबरदस्त हुआ और वो 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ जेल पे धावा बोलकर अपने बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया. उन्होंने अंग्रेज अफसरों पे भी हमला करके उन्हें मार गिराया. उन्होंने बंदूकों और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारत, बिल्डिंग्स और उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी. उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था. सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पे आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा. तो यहां पे आंसर दिया सिपाहियों ने कि बहादुर शाह जफर. आई मीन टू से दैट द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन इन टू देयर रूल इन द कंट्री, बट हु रूल द लैंड इन स्टीड. Soldiers had an answer to the question, the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar. The Sipahi of the Meerut rode all night of 10th May reached Delhi. और फिर ये जो सिपाही थे मेरठ के, ये कुछ सिपाही एक टोली में 10 मई की रात को घोड़ों पे सवार होकर अंधेरी मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग ही दिल्ली पहुंच गए. जैसे ही उनके आने की खबर दिल्ली में पहुंची, दिल्ली में तैनात जो सैनिक टुकड़ियां थी उन लोगों ने भी बगावत कर दी. यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए. देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिए और फिर इमारतों में आग लगा दी. बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी आग के हवाले कर दिए गए. बादशाह अंग्रेजों को भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं था. इट मीन्स कहने का सेंस ये था कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो सीधे अभी वो तुरंत लड़ाई फेस करें. सिपाही ये अड़े थे कि बादशाह अपने हाथ में नेतृत्व ले, बहादुर शाह जफर अपने हाथ में नेतृत्व ले, लेकिन बादशाह भी इसके लिए तैयार नहीं थे. आखिरकार बादशाह के ऊपर फोर्सली सिपाहियों ने अपनी बात मनवा ली. सिपाही जबरन महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया. बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की ये मांग मान ली. उन्होंने देश के जितने भी चिफ्टेन्स थे, जितने रूलर्स थे, लोकल रूलर्स, उनको लेटर लिखा और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का बात कही. बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए. इट मीन्स मुगल डायनेस्टी had ruled over a very large part of country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on the behalf of the Mughal rulers. Threatened the expansion of the British rule. Many of them left that the Mughal emperors could what? They felt, the many rulers, they felt that if कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे
मुगल एम्पायर एक बार फिर भारत हिंदुस्तान का बादशाह बन जाएगा, तो हमें फिर हमारी छोटी छोटी टेरिटरीज हमें वापस मिल जाएंगी। और जब जो एम्परर थे उन्होंने एक लेटर लिखा, एम्परर रोट ए लेटर टू ऑल द चीफ्स एंड द रूलर्स of the country to come forward and organize the confederacy of the Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implication. The British had not expected this to happen. They thought that disturbance caused by the issue of the cartilage would die down. ये जो समस्या उत्पन्न हुई, ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि अंग्रेजों के कभी दिमाग में भी ये बात नहीं आई थी कि इतना बड़ा घटना घट जाएगी। वो ऐसा मानते थे कि कारतूस के मुद्दे पर जो ये थोड़ी बहुत उथल पुथल हो रही है वो कुछ समय में अपने आप शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो लोगों में हिम्मत आ जाती है, लोगों में उम्मीद बढ़ जाती है, लोगों में आत्मविश्वास जग जाता है। और ऐसा ही हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट सिपाहियों और नेटिव्स लोगों के लिए। दे फील दैट आवर लीडर इज रेडी टू लीड अस, सो व्हाई वी नॉट बिकम रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर एक्सप्लॉइटेड अस ऑन द वेरियस वे, सो दैट्स टाइम वी हैव टू ऑर्गेनाइज, we have to assemble, and with the full proof plan we have to protest them. They felt who rebellions, who I mean to say that the सिपाही who become rebellion, सिपाही ऐसा सोच रहे थे और ऐसा हुआ जो कि अंग्रेजों की सोच के पूरी तरीके से विपरीत था। अंग्रेज सोचते थे कि नो ये ऐसा नहीं होगा। The Britishers had not expected this to happen. They always thought that this is disturbance caused by the issue of the cartilage would die down. But the condition changed when the Bahadur Shah Zafar decision to blaze the rebellion changed the entire situation dramatically. और यहां से पूरी परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। द रिबिलियन स्प्रेड, ये रिबिलियन स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि जब ये सूचना पहुंची अलग अलग टेरिटरीज में, अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहां पे भी रिवोल्ट होने शुरू हो गए। रिवोल्ट का एक सिलसिला शुरू हो गया। आफ्टर द ब्रिटिश वर द रूटेड फ्रॉम द दिल्ली, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर news to travel. Then a spread of the mutinies began. Regiment after regiment mutined and took off join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, Lucknow. After them, people of the towns and villages also rose up the rebellions again. They rallied around local leaders, jamidars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahab, the adopted son of the late Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, Bijlis Qadir, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab of Lucknow. He too acknowledged the sovereignty of the Bahadur Shah Zafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai joined the rebel सिपाही and she also changed himself as a rebellion. उन्होंने अपने को विद्रोही के रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्होंने अपनी सेना बना ली और फिर fought the British along the
Tatya Tope, the general of Nana Saheb. In the Mandal region of the Madhya Pradesh, Rani Avantibai, Lodi and Ramgarh raised and led an army to 4,000 against the British who had taken over the administration of the state. What we have seen here, we are discussing that the various type of revolt happened on the various part. When they felt that our leader is ready to provide us leading, हमें हमारा नेता मिल गया है. That is the time when we will not what organize. We cannot remove them. हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते. धीरे धीरे ये जो समस्या फैल रही थी, जब दिल्ली में जब अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, दिल्ली से अंग्रेजों को जब निकाल दिया गया, तो एक हफ्ते के अंदर ही धीरे धीरे ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलने लगी. एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदु, इट मीन द पॉइंट्स थे ये, जहां पे लोग असेंबल हो रहे थे, कलेक्ट हो रहे थे और ये रिवोल्ट के लिए प्लानिंग कर रहे थे. उनकी देखा देखी, सिपाहियों की देखा देखी, गांवों में, कस्बों में, छोटे छोटे नगरों में लोग भी सिपाहियों के साथ आके मिलने लगे. स्थानीय नेता, जमींदार, मुखिया के पीछे जो संगठित एक बड़ा वर्ग भी इस विरोध से अपने को सम्मिलित कर लिया. लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयारी कर ली. पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर के पास अपने को मुगल बादशाह का गवर्नर अपॉइंट करके एक बड़ी सेना बना ली. उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को सर से खदेड़ दिया. ठीक ऐसे ही लखनऊ में गद्दी से हटाए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिजलिस कादिर को नया नवाब घोषित कर दिया गया. बिजलिस कादिर ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया. उनकी मदर बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विद्रोह को बढ़ावा देकर न केवल विद्रोह को प्रमोट किया बल्कि उसमें हिस्सा भी लिया. और फिर इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली. उन्होंने नाना साहब के साथ सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर के अंग्रेजों को भारी चुनौती दिया. विद्रोही टुकड़ियों के सामने जो रिबेलियन ग्रुप्स थे, इन टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी. बहुत सारे मोर्चों पर उन्हें जबरदस्त हार हुई अंग्रेजों की और इनसे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है. अब लोग विद्रोह में कूद पड़ने लगे. बहुत तेजी संख्या में लोग विद्रोह की तरफ मुड़े. विद्रोह करने के लिए अब कॉमन वर्ग भी तेजी से क्या हो रहा था, जुड़ते चले जा रहा था. और इसका रिजल्ट जो रिबिलियन थे, जो अपराइजिंग थी, वो एक कहां तक चेंज हो रही थी, अपराइजिंग जन विद्रोह के रूप में बदल रही थी. इट मीन्स व्हाट द टॉपिक्स क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे कि जब एक विद्रोह जन विद्रोह के रूप में कन्वर्ट हो रहा था. दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. और इन सारी चीजें में ये सभी लोग, ये सारे जितने भी वर्ग थे, सिपाही, किसान, जमींदार, तालुकदार, छोटे राजा, ये सभी की एक प्रॉब्लम थी. वो थी ब्रिटिशर्स की जा रही क्या, उनके द्वारा लिए गए स्ट्रिक्ट स्टेप्स, कठोर कदम. Maybe that was the political, maybe that was the social, maybe that was economical and cultural also. धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, इन सभी कारणों में हर एक वर्ग किसी न किसी तरीके से प्रभावित था और वो सब लोग एक साथ विद्रोह करने के लिए ललायित हो गए. 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था. टाइलर लिखता है कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई में थक गए हैं. एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं. और इस दौरान सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए. उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह
कि भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है और इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की विशाल संख्या जुटा ली। अपने फॉलोअर्स के साथ वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्मयोद्धा इकट्ठा हुए। बरेली के सिपाही बख्त खान थे। लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया और इस बगावत, इस रिवोल्ट में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए बख्त खान। बख्त खान बिकेम द जनरल ऑफ रिवोल्ट 1857। दिल्ली में बरेली से वो दिल्ली पहुंचे अपने लोगों के साथ, यंग जनरेशन के युवाओं के साथ। और फिर एक ये विद्रोह की जो एक बड़ी परंपरा बनी, आई मीन टू से दैट की द रिवोल्ट दैट वाज very little bit time, it spread the very vast level. The local leaders, local rajas, local jamidar, talukdars, they also involve himself in that revolt. और फिर धीरे धीरे रिवोल्ट का रीजन ये हुआ कि रिवोल्ट बहुत तेजी से बढ़ा। द ब्रिटिश वर ग्रेटली द outnumbered by the rebel forces. They were defeated in the number of battles. This convinced that the people that the rule of the British had collapsed for a good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of the widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in the particular. On 6 August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tyler to his commander-in-chief, expressing the fear felt by the British, who wrote that our men are what? The cowed by the number opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The Jamidars have risen to oppose us. And that's result, that situation totally against the Britishers. और धीरे धीरे ये क्या हुआ, विरोध इतना बढ़ गया कि पूरी धीरे धीरे सत्ता अंग्रेजों के अपने हाथ से जाती महसूस हुई। What we read today, having discussed the whole paragraph, we can easily understand that what happened during that time, how the problems of the common people was used by the local leaders and Sipahi. The causes, how can all the causes help mutiny become a popular rebellion? I hope you can easily understand. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे इसके आगे। गुड बाय एंड टेक केयर।